امیر ورسز غریب ماں کا پہلا رمضان۔ شام کے 7:30 بج رہے ہیں۔ شہر کی فضاؤں میں عجیب سی بے چینی اور خوشبو گھلی ہوئی ہے۔ چھتوں پر ہزاروں آنکھیں آسمان کو ٹکٹکی لگائے نہار رہی ہیں۔ اچانک سے مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے آواز آتی ہے، سبھی لوگوں کو مبارک ہو، رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، کل پہلا روزہ ہے۔ مسجد کے اعلان ہوتے ہی گلی میں شور مچ گیا۔ زویا اپنے عالی شان برآمدے میں کھڑی ہے اور رحیمہ اپنی ٹوٹی چھت سے چاند کو دیکھ رہی ہے۔ ارے نظمہ جلدی جلدی کرو نا، ابھی وہ کونے والا جھومر بھی صفائی کے لیے بچا ہوا ہے۔ اعلان ہو گیا ہے، کل پہلا روزہ ہے، رمضان سے پہلے گھر کی صاف صفائی ہو جائے تو برکت ہوتی ہے۔ ارے باجی آپ فکر نہ کریے، سارا کام ہو جائے گا۔ امی کل سے رمضان سٹارٹ ہو رہے ہیں، آپ میرے لیے صبح شہری میں بادام شیک بنا دینا۔ رمضان مبارک ہو زویا، یہ دیکھو رمضان کے لیے اجوا کھجور لایا ہوں، سیدھے سعودی سے منگوائے ہیں۔ ایک کھجور کی قیمت سنو گے تو حیران رہ جاؤ گی۔ آپ کو بھی رمضان مبارک ہو عاطف، بہت اچھا کیا آپ نے اجوا کھجور لے آئے، مجھے تو بس یہی کھجور پسند ہے۔ ادھر گلی کے موڑ پر ظفر ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تھیلی لیے ہوئے گھر لوٹ رہا ہے۔ ابو کل پہلا روزہ ہے، ہمارے گھر میں بھی اب روز اچھا اچھا کھانا بنے گا۔ بیٹا رمضان صرف اچھے کھانے کا مہینہ نہیں، یہ تو عبادت کا مہینہ ہے۔ یہ لو کھجور، امی کو دے دو، کل اسی سے روزہ کھولیں گے۔ ظفر آپ آ گئے، رمضان کے لیے سامان تو لائے ہیں نا، کل پہلی شہری ہے۔ شکر کے دام بڑھ گئے ہیں رحیمہ، آج صرف 1 کلو آٹا اور آدھا کلو بیسن لا پایا ہوں، چائے پتی کل لے آؤں گا۔ امی میری گلک میں 20 روپے ہیں، میں شہری کے وقت جا کر چائے پتی لے آؤں گی، آپ ابو کو مت پریشان کریے۔ رات کے 3:30 بجے ہیں۔ زویا کے گھر میں ہر طرف روشنی ہے اور ٹیبل طرح طرح کے کھانوں سے بھرا ہوا ہے۔ محسن بیٹا اٹھ بھی جاؤ، شہری کا ٹائم ہو گیا ہے، تمہارے لیے میں نے ملائی کے پراٹھے بنائے ہیں، تازہ انار کا جوس بھی نکالا ہے اور ڈرائی فروٹ کا حلوہ تو خاص میں نے اپنے بیٹے کے لیے بنایا ہے۔ ممی اتنا سارا کھانا بنا لیا آپ نے، میری تو نیند ہی نہیں کھل رہی، اتنی بھور میں کیسے کھانا کھاؤں؟ میرے بچے جب پورا دن بھوکا اور پیاسا رہنا ہے تو بھور کو شہری تو اچھے سے کرنی ہی پڑے گی نا۔ چلو اب جلدی سے اٹھ کر آ جاؤ، اچھے بچے آلس نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف رحیمہ کے گھر میں فیکی سی روشنی ہے۔ امی آج تو رمضان کی پہلی سحری ہے، کیا بنایا آپ نے؟ ہاں میرے بیٹے آج رمضان کی پہلی شہری ہے، لو آج رات کی بچی ہوئی ایک روٹی ہے اور یہ تھوڑا سا گڑ، اسے پانی کے ساتھ کھا لو، اللہ طاقت اور برکت دے گا۔ امی آپ نہیں کھائیں گی؟ آپ نے تو صرف پانی کا گلاس پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں۔ فاطمہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے، تم اور حیدر کھا لو اچھے سے، آج پہلا روزہ ہے، کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ فاطمہ اور حیدر دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر شہری کھاتے ہیں اور ان کی ماں رحیمہ ظفر کے پاس آتی ہے۔ رحیمہ آج صبح مزدوری پر جلدی جانا ہے، دعا کرنا کہ کچھ زیادہ پیسے مل جائیں تاکہ شام کو بچوں کو افطار کے وقت تھوڑے پھل لا سکوں۔ وہ بڑے گھر سے جب پھل اور کھانے کی خوشبو آتی ہے تو حیدر کا چہرہ دیکھا نہیں جاتا۔ رمضان کی پہلی سحری کے بعد صبح کے 11:30 بج رہے ہیں۔ دھوپ کی تپش دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے۔ زویا اپنے عالیشان گھر کے ہال میں بیٹھ کر نوکروں کو آرڈر دے رہی ہے، وہیں رحیمہ دوسروں کے گھر کام کرنے جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ ارے نظمہ فریج میں کیسر رکھا ہوا ہے، اسے نکالو، اور ہاں چکن کو صاف پانی سے 3-4 بار اچھے سے دھو لینا، محسن کو مہک بالکل بھی نہیں پسند ہے۔ جی باجی اچھے سے دھو لوں گی، لیکن آج تو آپ کا روزہ ہے، آپ آرام کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ آرام کیسے کروں، آج رمضان کی پہلی افطاری ہے، میرے افطاری کی شان پورے محلے میں مشہور ہونی چاہیے، سب کو پتا چلنا چاہیے کہ عاطف کی بیوی زویا کے دسترخوان پر کیا کیا سجتا ہے، سب کے گھر تک میری افطاری کی مہک جانی چاہیے، کم سے کم 20 طرح کی ڈشز تو ہونی ہی چاہیے۔ دوسری طرف رحیمہ اپنے چھوٹے سے گھر کے دروازے کی کنڈی لگا رہی ہے، ساتھ میں بیٹی فاطمہ بھی کھڑی ہوئی ہے۔ امی باہر کی دھوپ میں تو کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، آپ روزہ رکھ کر اس جلا دینے والی دھوپ میں کام پر کیسے جاؤ گی؟ ارے میری بیٹی کام پر نہیں گئی تو آج افطاری میں تمہیں اور حیدر کو کیا کھلاؤں گی؟ اب اگر اللہ نے روزہ رکھنے کی ہمت دے دی ہے تو کام کرنے کی بھی ہمت ضرور دے گا، تم بس گھر میں اچھے سے رہنا اور اپنے چھوٹے بھائی حیدر کا خیال رکھنا۔ دوپہر کے 2 بجے رحیمہ کام کر کے گھر واپس لوٹتی ہے۔ وہ زویا کے عالیشان گھر کے پاس سے گزرتی ہے، جہاں زویا ہاتھوں میں ڈھیر سارے شاپنگ بیگز لیے ہوئے اپنی مہنگی گاڑی سے باہر نکلتی ہے۔ ارے رحیمہ کہاں سے آ رہی ہو؟
रमजान के महीने में रोजा रखकर भी इतनी भाग दौड़ करोगी? अरे अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगी? घर में बैठकर थोड़ी इबादत कर लिया करो। अरे बहन, रमजान के रोजे रख के अपने बच्चों का पेट पालने के लिए काम करना भी तो एक इबादत है। और फिर तो हम रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग हैं। वो तो है, पर देखो इबादत का मजा तो तब है जब सुकून हो। अब मुझे देखो, मैंने पूरे मोहल्ले के लिए इफ्तारी मंगवाई है। ये देखो महंगे खजूर और फल। अब मैं आराम से जाकर तस्बीह पढ़ूंगी। और तुम तो थक कर चूर हो गई होगी, खा के इबादत करोगी। अब आपका सुकून तो आपके बैंक बैलेंस में है, मेरा सुकून मेरे बच्चों में है। आप बहुत सारा खाना बनाकर अपना दस्तरख्वान सजाएंगी, मैं अल्लाह से दुआएं करके अपना दस्तरख्वान सजाती हूँ। बस तुम लोगों से बातें ही करवा लो। चलो मोहसिन अंदर चलो, इन लोगों की बातें कभी भी खत्म नहीं होती। चलो। जोया के घर के सामने जो कड़वी बातचीत होती है, उसके बाद रहीमा अपने घर चली जाती है और जोया भी अपने घर के अंदर जाकर एसी चलाकर लेट जाती है। तभी मोहसिन चुपके से अपने घर से निकलकर बाहर हैदर से मिलने चला जाता है। हैदर, सुन रहे हो? मैं मोहसिन, इधर तो देखो। दोनों घरों के बीच में एक दीवार है जिसमें छोटा सा एक सुराख है। उस सुराख से हैदर और मोहसिन अक्सर बातें किया करते हैं। अरे मोहसिन भाई, आप इतनी धूप में बाहर आ गए? अगर आपकी मम्मी ने देख लिया तो फिर बहुत चिल्लाएंगी। अरे मेरी अम्मी तो सो रही है, इसीलिए तो चुपचाप बाहर निकला हूँ। और पर तुम इतनी धूप में क्या कर रहे हो बाहर? घर में अकेला अच्छा नहीं लग रहा था ना, इसीलिए मैं बाहर आ गया। देखो, मैं मिट्टी से कितना बड़ा घर बनाया है। वैसे हैदर, आज तो तेरा पहला रोजा है, प्यास तो नहीं लग रही? पता है, आज मेरा भी पहला रोजा है। मम्मी ने कहा है कि आज शाम की इफ्तारी में मेरी पसंद की होगी। तुझे पता है आज हमारे यहाँ क्या क्या बन रहा है? रमजान का पहला दिन गुजर जाता है। मोहसिन भाई, मुझे कैसे पता होगा आपके घर में क्या क्या बन रहा है? आप बताइए। आज मटन के कबाब होंगे, मलाई कोफ्ता, फिरनी और वो जो लाल वाला महंगा शरबत आता है ना, जिसमें सूखे मेवे तैरते हैं, वो वाला। और हाँ, समोसे तो 3 तरह के बन रहे हैं। इतना सारा खाना सोच सोच के तो मुझे और भी भूख लग रही है। बस मैं तो शाम होने का इंतजार कर रहा हूँ। अरे वाह मोहसिन भाई, आपके यहाँ तो बहुत अच्छी इफ्तारी बनेगी। मटन कबाब का नाम सुनकर तो मुझे भी भूख लगने लगी। और वो लाल वाला शरबत तो मेरा फेवरेट है। अरे तू परेशान क्यों हो रहा है? चल तू बता, तेरे यहाँ क्या बन रहा है आज इफ्तारी में? अम्मी ने कहा था कि आज पहला रोजा है, इसीलिए बेसन की पकौड़ियाँ बनाएंगे। और अब्बू ने भी वादा किया था कि अगर उनको पैसे मिल गए तो वो बर्फ की एक सिल्ली खरीद कर लाएंगे। हम लोग भी ठंडा पानी पियेंगे आज मोहसिन भाई। तभी जोया उठकर बालकनी में आती है। मोहसिन को हैदर से बात करते हुए देखकर उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। मोहसिन, मैंने तुमको कितनी बार मना किया है कि इस हैदर के साथ दोस्ती मत रखो, लेकिन पता नहीं तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता। और हैदर, तुमको भी कोई शर्म नहीं है? 1000 बार मना कर चुकी हूँ, फिर भी तुम बार बार आ जाते हो। अरे अम्मी, मैं तो बस हैदर से पूछ रहा था कि आज शाम को उनकी इफ्तारी में क्या बनेगा। अरे मोहसिन, इन लोगों के घर में इफ्तारी हम लोगों के घर जैसी नहीं बनती। उनके यहाँ तो बस पानी से ही रोजा खोल लिया जाएगा। जोया की कड़वी बातें सुनने के बाद हैदर अपना मुंह लटकाकर घर चला जाता है और मोहसिन भी अपनी माँ की बातें सुनकर उदास हो जाता है। तभी फातिमा हैदर के पास आती है। अरे हैदर, तुम्हें क्या हो गया? अपना मुंह क्यों उतार लिया तुमने? क्या प्यास लगने लगी? नहीं फातिमा अप्पी, मुझे प्यास नहीं लग रही है। अरे तो फिर रो क्यों रहे हो? क्या हो गया? किसी ने कुछ कह दिया क्या? हाँ फातिमा अप्पी, मोहसिन भाई की अम्मी ने मुझ पर बहुत चिल्लाया। वो कह रही थी कि मोहसिन से बात मत किया करो, और वो ये भी कह रही थी कि हम लोग कंगाल हैं, हमारे यहाँ इफ्तारी नहीं बनती, हम लोग सिर्फ पानी से ही रोजा खोल लेते हैं। हैदर, मेरे छोटे भाई, उनकी बातें सुनकर तुम खुद को मत परेशान करो। उनकी तो आदत ही है, वो सबको ऐसे ही कह देती हैं। हैदर, तुम्हें बताऊं, जो लोग दूसरों को छोटा समझते हैं ना, असल में वो लोग खुद छोटे होते हैं। उनके पास सिर्फ पैसे हैं पर दिल नहीं है। फातिमा के समझाने के बाद हैदर सारी बातें भूल जाता है। इसी तरह कुछ घंटे गुजर जाते हैं और मोहल्ले के सभी घरों में इफ्तारी बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। मोहल्ले के सभी घरों से अलग अलग खाने की खुशबू आ रही थी। कहीं प्याज के पकौड़ों की सौंधी महक थी तो कहीं उबलते हुए चनों की, लेकिन सबसे ज्यादा महक जोया के उस आलीशान बंगले से आ रही थी जो पूरे मोहल्ले को बता रही थी कि आज वहाँ शाही इफ्तार है।
अरे ओ नज़्मा, वो केसर वाला दूध फ्रिज में रखा या नहीं? और सुन, फ्रूट चाट में सिर्फ सेब और केला मत डाल देना। मैंने जो कीवी और अनार मंगवाए हैं वो भी डालना। मिर्जा साहब के बच्चे आ रहे हैं, हमारी इफ्तारी सबसे महंगी और शाही दिखनी चाहिए। अम्मी, मिर्जा साहब के बच्चों का तो आपको ख्याल है, लेकिन मैंने जो मटन कबाब और वेज मोमोज का कहा था आपसे, आज इफ्तारी में वही चाहिए मुझे। दीवारों की दूसरी तरफ रहीमा का छोटा सा आंगन था। वहाँ पकवानों का अंबार तो नहीं था, पर रहीमा ने पुराने चूल्हे पर थोड़ा सा तेल में बेसन की पकौड़ियाँ तलना शुरू किया। जैसे ही पकौड़ियों की महक हैदर की नाक तक पहुँचती है। अम्मी, आज हमारे घर में भी मटन कबाब बने हैं क्या? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। नहीं मेरे बेटे, मैं तो बेसन की पकौड़ियाँ तल रही हूँ। मटन कबाब तो अमीरों के घर में बनते हैं। अम्मी, मोहसिन भाई के घर में तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उन्होंने मुझे बताया था आज इफ्तारी में उनके घर पर मटन कबाब बनेंगे और लाल वाला शरबत भी बनाया जाएगा। मुझे भी पीना है लाल वाला शरबत अम्मी, मेरा भी तो पहला रोजा है आज। मैं कहाँ से लेकर आऊँ बेटा लाल वाला शरबत? हमारे घर में तो मटके का ही पानी है। मुझे यूँ परेशान न कर मेरे बच्चे। हैदर का मुंह लटक गया। उसे भूख और प्यास से ज्यादा उसे लाल शरबत की हसरत तड़पा रही थी। तभी फातिमा ने उसका हाथ थामा। हैदर, इधर देखो, क्या तुम्हें पता है कि अल्लाह को सबसे ज्यादा रोजगार का सब्र पसंद आता है, न कि जायकेदार खाने की भीड़। तुम मोहसिन के घर का दस्तरख्वान मत देखो, तुम अपनी अम्मी अब्बा की मेहनत देखो, जो दिन भर की मेहनत करके तुम्हारे लिए बेसन लाए हैं ताकि तुम्हें बेसन की पकौड़ियाँ खिला सकें। अप्पी, आप सही कह रही हो। अम्मी थक गई होंगी, मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था। मगरिब की अजान का वक्त करीब आ गया। सभी लोग दस्तरखान पर बैठकर अजान का इंतजार करते हैं। मगरिब की अजान हो गई। आतिफ, ये मटन कबाब लीजिए, और मोहसिन तुम वो लाल वाला शरबत लो, तुम्हें बहुत पसंद है ना? जोया का दस्तरखान अलग अलग तरह के खानों की डिशें से भरा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ रहीमा के घर में फटी चटाई के ऊपर दस्तरखान बिछा हुआ था, जिस पर 4 खजूर, मटके का पानी और बेसन की बनाई हुई पकौड़ियाँ थी। या खुदा, तेरा शुक्र है कि तूने हमें ये हलाल का निवाला अता किया। दिन भर की प्यास के बाद हैदर ने बिस्मिल्लाह पढ़कर पहली घूंट पानी की पी। अम्मी, दिन भर का रोजा रखने के बाद तो ये मटके का पानी भी शरबत जैसा ही लग रहा है। गरीब माँ के दस्तरखान में खाना तो बहुत कम था, लेकिन सुकून बहुत ज्यादा था। सभी लोग इफ्तारी करके नमाज पढ़ते हैं। मोहसिन, जल्दी चलो बेटा, जमात खड़ी होने वाली है। और हाँ, ये नई मखमली जय नमाज भी साथ ले लो, हमें फर्श पर नमाज पढ़ना अच्छा नहीं लगता। आतिफ, सुना है मस्जिद के फंड के लिए आज चंदा जमा होना है। ये लीजिए 10,000 रुपए, वहाँ सबके सामने दीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि इस मोहल्ले में सबसे अमीर हम लोग हैं। मम्मी, क्या मस्जिद में भी पैसा दिखाकर दिया जाता है? मोहसिन, हर बात बीच में मत बोला करो। अभी तुम लोग बच्चे हो, तुम लोगों को कुछ नहीं पता है। इधर जफर ने अपना पुराना कुर्ता, जिसमें जगह जगह पर रफू है, वो पहना हुआ है, और हैदर ने भी अपनी छोटी सी टोपी लगाई और दोनों मस्जिद की ओर आगे बढ़े। अब्बू, मस्जिद में तो सब बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, कहीं हमारे पुराने कपड़े से अल्लाह ताला नाराज तो नहीं हो जाएंगे? नहीं बेटा, अल्लाह कपड़ों की कीमत नहीं देखता, अल्लाह अपने बंदों के दिल को देखता है। उनकी नीयत देखता है वो। मस्जिद के अंदर का मंजर बड़ा अजीब था। वहाँ ना कोई अमीर था ना कोई गरीब, पर इंसानी सोच ने वहाँ भी अमीरी और गरीबी की दीवारें खींच रखी थी। मोहसिन, इधर आओ बेटा, यहाँ सबसे आगे वाली सफ में बैठो। यहाँ पर पंखा चल रहा है तो गर्मी नहीं लगेगी। पर पापा, मुझे हैदर के पास बैठना है और हैदर पीछे बैठा हुआ है। पीछे आम लोग बैठते हैं मोहसिन, और हम लोग इस मोहल्ले के सबसे अमीर लोग हैं, तो हम लोग पहली में ही बैठेंगे। अब्बू, मोहसिन भाई के पापा ने उन्हें पीछे नहीं बिठाया था। क्या मस्जिद में भी अमीरी गरीबी देखी जाती है? अरे नहीं बेटा, अल्लाह के घर में तो सब बराबर हैं, चाहे कोई अगली सफ में बैठे या पिछली सफ में। अल्लाह आगे वालों को भी देखता है, पीछे वालों को भी, बस बंदे की नीयत साफ होनी चाहिए। इस तरह रमजान का पहला दिन गुजर गया। अमीर घर में पकवानों की नुमाइश हुई तो गरीब घर में सब्र की इबादत। दूसरे दिन भी सूरज ढलते ही मोहल्ला फिर से पकवानों की खुशबू से महकने लगा। जोया के घर में बनी बिरयानी की खुशबू रहीमा के कच्चे आंगन तक आ रही है। अल्लाह जी, इतनी अच्छी बिरयानी की खुशबू आ रही है। अभी तो मेरा रोजा है, पर अल्लाह ताला आज मुझे भी बिरयानी भेज दीजिए ना। इतने में ही दीवार के कोने से मोहसिन की आवाज आती है।
हैदर, पीछे देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये क्या